Hello, friends. My name is Sumit, and in this second episode of Kargil War, I am going to discuss about the Battle of Tololing. As I stated in the previous episode, that there were many such peaks like Tololing Top, Tiger Hill, 0.4875, and other complex features in the vicinity of such peaks, such as Hump, Three Pimples, Rock Knoll. So, keeping in mind the importance of National Highway 1, our first priority was to recapture those vantage points through which we could easily recapture the other peaks in the vicinity of that or those particular peaks. So the Tololing top was among those peaks which we prioritized in the initial stages. But दिक्कत ये थी साहब कि वो कहते हैं ना सबसे पहली लड़ाई सबसे मुश्किल होती है. दैट वाज द प्रॉब्लम. पूरी की पूरी 2-3 कंपनियां उन्होंने वहाँ पे प्लेस कर रखी थी पीक्स के ऊपर. मतलब 3 रेजिमेंट, मतलब 15 मई को मेरे ख्याल में हमने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया था वॉर को. 3 मई को फर्स्ट टाइम हमें टिप ऑफ मिली थी और 15 मई आते आते वी कुड डिक्लेयर द वॉर. एंड 20th May 1999 we were engaged in recapturing the Tololing Top. Tololing Top, or you can say 0.4590, was the closest vantage point towards the National Highway 1 connecting Srinagar and Leh. तो उसमें 3 रेजिमेंट को ऑलरेडी टास्क दिया गया हुआ था कि यू हैव टू recapture it as soon as possible. Naga was one of them, then Gadwal regiment was there, and then I think 18 Grenadier was there. और हर एक रेजिमेंट अभी तक असफल रही थी, क्योंकि मैंने जैसे कि पहले बताया यहाँ पे अपोनेंट को, एनिमी को क्लियर एडवांटेज था. क्लियर एडवांटेज. दिन में हम एसेंट कर नहीं सकते थे. They could easily see us, and in the night there were other problems. In these high locations you get to see frigid temperatures even in the night during summers. And then there were some moonlights also, so we had to wait for poor weather conditions and foggy conditions and also moonless nights. And even then climbing up as high as 5,000 meter or 15,000 plus feet height is itself was very daunting task for any soldiers of any different regiments. हर रेजिमेंट की अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन होती है, लेकिन इतनी हाइट पे सभी को दिक्कत आनी है. Then we also had to carry ammunitions with ourselves. LMG, light machine gun, वो खुद इतनी ज़्यादा हैवी होती है. उसके बाद we had to carry the food packs. यूँ बताते हैं कि soldiers had to consider the trade-off between carrying the food packs और bullets. मतलब या तो 2 kg food pack ले जाओ या फिर 100 bullets अपने साथ ले जाओ, 100 bullets. उसके बीच में ट्रेड ऑफ करना पड़ रहा था. सो इन 3 रेजिमेंट्स की काफ़ी ज़्यादा सोल्जर्स की शहादत हो चुकी थी अभी तक. 18 Grenadiers before it was asked to scale up for the Tololing Top, it was placed in Kashmir Valley, and then it was asked to regroup in the Dras sector, and this regiment did not get much time for acclimatization. Straight away they were asked to head first for the Tololing Top. So, and they did not even, I think they did not even get effective reconnaissance in this limited time. So you can say initially we were not very much well prepared. Then the second Rajputana Rifles, which was also placed in the Kupwara,
was asked to regroup in the Dras sector. So at that time, our army chief was जनरल वेद प्रकाश मलिक. तो उन्होंने 1 जून को दरबार लिया सेकंड राजपूताना राइफल्स का. यूँ मानते हैं कि सेकंड राजपूताना राइफल्स इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड बटालियन इन आर इन इंडियन आर्मी. उस टुकड़ी ने बहुत बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं टिल डेट. तो दरबार में जनरल साहब ने पूछा कि भाई कौन वॉलंटियर करेगा तोरलिंग टॉप पे झंडा गाड़ने के लिए. सबसे पहले कौन झंडा गाड़ेगा हमारे देश का. तो सबसे पहले जो आए वो थे दिगेंद्र कुमार, नायक दिगेंद्र कुमार. मुझे बोला सर मैं दिगेंद्र कुमार बेस्ट कमांडो ऑफ द ईयर 1999 सामने आता हूँ और सबसे पहले झंडा मैं गाड़ूंगा तोरलिंग टॉप पे. उसने अपना बोला मैं दिगेंद्र कुमार उर्फ कोबरा. उसको कोबरा के नाम से जानते थे देश में क्योंकि उसने पहले भी बड़े कारनामे करके दिखाए थे दिगेंद्र जी ने. वो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स में भी शामिल थे 1987-18 जब ये श्रीलंका में इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड साइन हुई थी 1987 में. तो उसमें तय किया गया था, उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे श्रीलंका के, उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि भाई JR जयवर्धने कि अपनी तरफ से एक पीस कीपिंग फोर्स भेजो और जो ये LTT के जो जितने भी मिलिटेंट्स हैं लिबरेशन टाइगर्स ऑफ द तमिलिलम. बेसिकली श्रीलंका को जब आज़ादी मिली थी तो उसके बाद वहाँ श्रीलंका में दो एक तो वहाँ पे सिनलीज लोग रहते हैं और दूसरे आपके तमिल स्पीकिंग जो रीजन्स है वहाँ पे तमिल्स रहते हैं. तो उनके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हुआ था. उनकी डिमांड्स थी कि भाई हमको भी कुछ आप पावर्स दे दो, फेडरल पावर्स, हमारी तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दो. तो इसके चलते काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे डिस्प्यूट चल रही थी और इसके चक्कर वहाँ पे एक मिलिटेंट आउटफिट बन गई थी LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ द तमिलिलम. तमिलिलम का मतलब था कि भाई तमिल इलम इज़ अ एंशिएंट वर्ड गिवन इज़ एंशिएंट टर्म विच इज़ यूज्ड for the Sri Lanka. So Tamil Illam. So they wanted to create this independent state, Tamil Illam. खैर साहब इस इंडियन पीस कीपिंग फोर्स में दिगेंद्र साहब मौजूद थे. तो he was asked to evacuate some of the soldiers, and in some operation the Major General Kalkat was thrown with a grenadier. Some grenadier was thrown at him, and Digendra Kumar, picked that grenade in the air itself and thrown it back towards the enemy. So since then, the Major General Kalkat Saab asked him, "What's your name?" So he replied, "Sir, I am Digendra Kumar." तुम दिगेंद्र कुमार नहीं, तुम कोबरा हो. और फिर 1999 में उनको बेस्ट कमांडो ऑफ द ईयर भी से भी नवाजा गया था. तो जब जनरल मलिक साहब ने पूछा कि भाई कौन वॉलंटियर करेगा तो सामने आए. वेरी गुड. तो उसके बाद फिर इसका टास्क दिया गया सेकंड राजपूताना राइफल्स को, क्योंकि 2 जून तक भी रियलाइज की एनफ इज एनफ. वी कैन नॉट अफोर्ड our soldiers to lay their life like this. So we decided to re-strategize and then come back stronger. तो ये डिसाइड हुआ कि भाई एक बार दोबारा से रेकी करो और री-स्ट्रेटेजाइज करो कि कैसे इसको रिकैप्चर करना है. तो दिगेंद्र कुमार एंड सम ऑफ हिज कंपेनियन इंक्लूडिंग द कर्नल MB Ravindra Nath, if I'm not mistaken. So these people went for रेकी. तो ये रेकी करके आए तो दिगेंद्र कुमार सर पीछे से देख के उन्होंने सारी रेकी करके मूवमेंट चेक करके एनिमी की केम बैक और उसने अपनी स्ट्रेटेजी बताई. स्ट्रेटेजी अपने जब CO को बताई, कमांडेंट ऑफिसर को, तो उन्होंने बोला कि भाई जनरल साहब आपसे कुछ बात करना चाहते हैं. तो उस टाइम पे फिर वेद मलिक साहब ने उनसे बात करी. बोला
हाँ भाई दिगेंद्र, क्या क्या डिसाइड किया आपने? कह रहा सर जो तोरोलिंग की पहाड़ी है वो कुछ इस तरीके की है, और हमें उसकी रियर एंड, जो पीछे वाला हिस्सा है, उस पर चढ़कर इस पीक को चढ़ना है, और यहाँ से फिर जो दुश्मन की जो बंकर्स हैं उसकी मूवमेंट देख के उस हिसाब से हमें अटैक करना होगा। अब वो सब तो ठीक है, बट आप हाउ वुड यू क्लाइंब दिस थ्रू द स्टीप साइड ऑफ द टॉप? गिर गए तो? कह रहे सर मैं चढ़ गया तो। ही वॉज सो कॉन्फिडेंट, मैं अगर चढ़ गया तो कारगिल युद्ध की सबसे पहली जो सक्सेस होगी वो तेरे नाम पे होगी मेरे बेटे। ये उन्हीं की ज़ुबानी है, मैंने उनके कुछ इंटरव्यूज़ देखे हैं और थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा भी है, तो वहाँ से मुझे पता चला। मैं बीच में कुछ वर्ड्स भी यूज़ करूँगा, दोज वर्ड्स वर यूज्ड बाय दिगेंद्र कुमार हिमसेल्फ इन सेवरल इंटरव्यूज, यू कैन ऑल्सो वॉच दोज इंटरव्यूज ऑनलाइन। तो मैंने कहा ठीक है साहब, तो आपको जो भी चीज़ चाहिए मुझे बताइए। मैंने कहा सर मुझे सबसे पहले तो जो स्पोर्ट्स पर्सन जो जो इंजेक्शंस यूज़ करते हैं, जिनसे उनको आसानी से थकान नहीं होती, जो भी स्टेरॉइड्स वगैरह होते हैं, मुझे वो चाहिए होंगे, क्योंकि इसको इसको स्केल अप करने में ही मुझे कम से कम 10 से 12 घंटे लग जाएंगे, और इतना टाइम नहीं था हमारे पास कि हम उसको धीरे धीरे करके वहाँ तक पहुँच पाते। ठीक है, आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। तो दिगेंद्र कुमार हिमसेल्फ सिंगल हैंडेडली, आई थिंक, स्केल्ड अप दैट पीक विद इन 14 आवर्स। 14 घंटे नॉन स्टॉप उस फौजी ने उस पीक पर चढ़कर रस्सा बांध दिया। वो रस्सा बांधना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर उनको भी कुछ हो जाता तो बाकी लोग चढ़ सकते थे, बट यू नो सरप्टिशियसली, छुप छुप के, बहुत ही समझदारी से दिगेंद्र सर ने वो रस्से को बांध के वापस आ गए, और बाद में आके जनरल साहब को बताया कि सर ऐसे ऐसे है और मैंने बांध दिया। कह रहा भाई बहुत बढ़िया, क्या फिर क्या नोटिस किया आपने? कह रहा सर करीब 15 से 20 तक दुश्मन ने अपने बंकर्स वहाँ पे सेटअप कर रखे हैं। अच्छा, तो फिर क्या प्लान है आपका? मेरा प्लान सर सिंपल है, मैं अपनी टीम के साथ जाऊंगा। एक से एक खतरनाक कमांडो थे उसकी टीम में, ये उन्हीं का खुद मानना है। 10 लोगों की टीम थी, लेड बाय मेजर विवेक गुप्ता। तो इनकी बटालियन जो है, मेरे ख्याल में 10 या 11 जून को उन्होंने चढ़ना शुरू किया पूरी स्ट्रेटेजी के साथ। और तो जब जब ये जाने लगे तो उससे पहले दिगेंद्र कुमार जी ने, जो आर्टिलरी यूनिट में मेरे ख्याल में कुछ सूबेदार थे, उनसे वादा लिया कि जब मैं ऊपर, दे कुड इजीली कम्युनिकेट थ्रू रेडियो सेट। तो बोला कि बिफोर आई वुड रीच दिस टॉप, आई गिव यू अ बज, एंड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू फायर 1 मीटर अबव दिस पीक। बोला ऐसा क्यों? और अगर मैं ऊपर, क्योंकि मैं ऊपर पहुंचूंगा और आपको ऊपर फायर करना, कह रहा इन दैट केस व्हाट इफ यू गेट हिट बाय द बुलेट्स? कह रहे नहीं, आप, उन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि जो जो बुलेट्स होगी उसके बीच में ट्रेसर्स को डाल दिया जाएगा। तो ट्रेसर से क्या होता है कि जब जब गोलियां चलती हैं तो उसके बीच में कुछ ट्रेसर्स को डाल दिया जाता है, जिससे कि वो रात को चमकती हैं, दिखती हैं कि कहाँ कहाँ से गोलियां जा रही हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि आप कम से कम 1 मीटर ऊपर फायरिंग करना, और थ्रू दोज वेरी ट्रेसेस आई कुड इजीली सी कि कितनी मीटर ऊपर तक आपकी जो बुलेट्स हैं वो फायर की जा रही हैं, और इन दैट शॉर्ट विंडो वी वुड बी एबल टू कम डाउन एंड टेक अवर पोजिशंस। खैर साहब एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ कि करीब 2-3 मीटर ऊपर तक फायर जा रहे थे कुछ टाइम के लिए। सो ऑल दीज 10 कमांडोज। अच्छा, फिर उनसे पूछा गया दिगेंद्र जी से कि भाई फिर कैसे क्या करना है? सर आप बताओ। कह रहे नहीं नहीं, आप रेकी करके आए हो, आप बताओगे। उन्होंने बोला कि मैं तो पहले बंकर को जाके उड़ा दूंगा ग्रेनेडियर से। दिगेंद्र कुमार वॉज कैरिंग 1 AK-47 एंड अराउंड 350 बुलेट्स,
18 ग्रेनेड्स 36 नंबर वाले, और कम से कम मेरे ख्याल में 2 पिस्टल्स ही वॉज कैरिंग विद हिमसेल्फ। तो बाकियों ने भी ऐसे हाँ भरनी शुरू कर दी। उनके साथ दूसरे थे सूबेदार भंवरलाल। उनकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसी आई थिंक इसी एपिसोड में आई विल कवर इट। फिर सब ने एक के बाद एक, ठीक है इस बंकर को मैं कैप्चर करूँगा, इस बंकर को मैं उड़ा दूंगा, इसको मैं उड़ा दूंगा, ऐसे करते करते उन्होंने डिसाइड कर लिया। तो हुआ साहब ये कि रात का टाइम था और बर्फ़ ऊपर गिरी हुई थी, जून के महीने में भी। उस बर्फ़ में अंधेरे में दिगेंद्र कुड नॉट इजीली आइडेंटिफाई। उनको लगा वो बर्फ़ के बीच में कुछ कुछ काला सा पत्थर है, तो जैसे उस पर झपट्टा मारा वो दुश्मन की बैरल हाथ में आ गई। बैरल मतलब जो बंदूक का आगे वाला हिस्सा होता है, नाली जो होती है। जैसे ही वो हाथ में आई, दी एनिमी क्रॉस फायर्ड, इमीडिएटली 3 बुलेट्स बाउंडेड हिम। आई थिंक उनके राइट साइड पे लगी थी गोली, 3 गोलियां लगी, तो वह एकदम नीचे हो गए। तो आपको जो फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में इस तरीके से इस तरीके की लड़ाई में जो गोलियां लगती है, तो आप कुछ सेकंड्स के लिए तो होपलेस हो ही जाते हो। तो बट नो, विदाउट लूजिंग हिज without losing his focus, he immediately took out 2 grenades I think, और उसके लीवर को निकाल के आराम से उनकी उसमें बंकर में 2 ग्रेनेड छोड़ दिए, और उसके बाद हवा में उड़ गया वो बंकर। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स ही वॉज मोटिवेटेड इनफ टू कैरी आउट द ऑपरेशन फर्दर, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन में उनके बाकी 9 जो कंपेनियंस थे उनमें से कोई भी नहीं बचा। ओनली दिगेंद्र कुमार वाज द वन हु कुड सक्सेसफुली कंप्लीट द ऑपरेशन। और उसी वक्त पे जो पीछे से आए थे, उसी वक्त पे जो एक और 2 बटालियन थी, 2 या 3 कंपनी सामने से भी नीचे से ऊपर आ रही थी। तो बंकर्स में जो सोल्जर्स थे उनको नहीं पता था कि पीछे से भी आ रहे हैं। सो वो बहुत ही ज़बरदस्त फायरिंग कर रहे थे। अच्छा, इनका पूरी ये बेसिकली 5th नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री बटालियन थी जो टॉलिंग टॉप पे थी, और इसके जो कमांडर थे वो मेरे ख्याल में मेजर अनवर खान थे, वो सबसे ऊपर थे। तो उनके पास थी HMG, हैवी मशीन गन। हैवी मशीन गन 1 मिनट के अंदर 800 से 1000 राउंड फायर कर सकती है। कभी आप यूट्यूब पे देखना उसको। तो वो हैवी मशीन गन के साथ बिल्कुल उसने दबा रखा था हमारी जो सामने से 2-3 टुकड़ियाँ आ रही थी। तो खैर साहब, इन्होंने जब पहला बंकर उड़ा तो द एनिमी रियलाइज्ड कि चौथा हमला दोबारा हो गया है इंडिया की तरफ से। तो उन्होंने बोला कि चौथा हमला भी फेल करेंगे या अली। हमारे वाले बोल रहे थे जय बजरंगबली। तो उस दौरान करीब जो 9 कमांडो थे उन्होंने, सर कमांडो जो होता है ना, मैं बताऊँ आपको, कमांडो मूवी देखी है ना, कमांडो मूवी मेरे ख्याल में विद्युत जम्वाल की, देखा होगा किस तरीके की ट्रेनिंग होती है पैरा कमांडोज की। तो आर्मी में जो बहुत टॉप लेवल के सोल्जर्स होते हैं ना, उनको मौका मिलता है जाके कमांडो की यूनिट में सेलेक्ट होने का, और उसमें से हर कोई सेलेक्ट नहीं हो पाता है। हर रेजिमेंट, हर बटालियन के टॉप सोल्जर्स रिप्रेजेंट करते हैं अपनी बटालियन को, और करीब 10,000 लोगों में से मात्र 300 लोग सेलेक्ट होते हैं कमांडो में। तो इस कदर की ट्रेनिंग होती है कमांडो की। मतलब यूँ माना जाता है कि उनको हर टेरेन में वो कोई भी ऑपरेशन को लीड करने के लिए सक्षम होते हैं। आग, पानी, हवा, कुछ भी। मतलब वो काउंटर टेरर ऑपरेशन में भी लीड कर सकते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में भी लीड कर सकते हैं, सी वॉरफेयर में भी लीड कर सकते हैं। अगर कोई कोवर्ट ऑपरेशन करना है जंगल्स में, तो वहाँ पे भी वो लीड करके अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। इस कदर उनकी ट्रेनिंग होती है। तो ये वो 10 कमांडो थे। तो 9 कमांडो ने छोटे छोटे जो 30 हमारे जो इनके पाकिस्तान के सोल्जर्स थे, उन 30 कम से कम 30 सोल्जर्स के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। हैंड टू हैंड कॉम्बैट
हुआ था सर वहाँ पे। और सिर्फ तोलुलिंग टॉप पे नहीं, कई जगह हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुआ था, क्योंकि कुछ असॉल्ट यूनिट्स भी होती हैं जो डायरेक्ट जाके कन्फ्रंट करती हैं उनको। मतलब बहुत सारे किस्से हैं इस कारगिल वॉर के, जहाँ पे कुछ वक्त तो ऐसा भी आया जहाँ पे बिल्कुल मेरे ख्याल में 5-5 मीटर की दूरी पे एक दूसरे के साथ वर्ड्स एक्सचेंज हुए। मतलब वो कुछ बोलते थे इधर से, ये कुछ लोग ये कुछ और बोलते थे, तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी हुआ था। तो बट जो 9 कमांडो थे वो बहुत ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हो गए थे ग्रीवियसली। और उस दौरान, और उनको कहीं ना कहीं ये बात पता थी, उनको कहीं ना कहीं बात पता थी कि जैसे जब दिगेंद्र जी से पूछा गया कि भाई आप क्या करोगे, उन्होंने बोला मैं तो पहला अपना बंकर उड़ा दूंगा और उसके बाद जय हिंद बोल दूंगा। मतलब दे हैड दिस आइडिया कि देर वॉज अ वेरी रिमोट चांस for them to survive. But nevertheless, at least our battalions, which were trying for past many days uh, to come and recapture the top, at least they would succeed, क्योंकि वो उनको 15 मीटर 20 मीटर तक भी नहीं आने देते थे। तो ये हुआ कि फिर थ्रू आउट द नाइट फर्स्ट एड अपने आप को लगा के दिगेंद्र जी ने, और एक के बाद एक चुपके चुपके, अच्छा क्या हुआ कि जो बंकर्स थे उसमें जो जो बैरल होती है गन की, वो उसको सपोर्ट दिया होता है, तो वो एक एंगल से ज़्यादा नीचे नहीं आ सकती। एंड दिगेंद्र वॉज प्लेस्ड इन ए वेरी स्ट्रेटेजिक पोजिशन, दैट्स वाई हिज सोल्जर्स वर सेइंग कि दिगेंद्र इनको, इन कुत्तों को छोड़ना मत। आई एम नॉट यूजिंग these words himself used by दिगेंद्र इन द इंटरव्यू। तो ऐसा कुछ उन्होंने कहा ही होगा। बोला था कि इनको मत छोड़ना, और तूने बहुत सही पोजीशन ली हुई है, क्योंकि वो इस नीचे की तरफ कहीं था। तो वो करते करते, झुकते झुकते हर एक बैंकर में 2-2 3-3 ग्रेनेड छोड़ के उसने सुबह 4 बजे तक 11 बंकर उड़ा दिया अकेले ने, दिगेंद्र कुमार ने। ऊपर से अनवर खान गाली दे रहा था, बाहर निकल हिंदुस्तानी कुत्ते। तो हुआ ये कि शुरुआत में ही उनके हाथ से AK-47 छूट गई थी। एंड ही वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन लाइट मशीन गन, दिगेंद्र कुमार। आई थिंक हिज फ्रेंड, हिज कंपेनियन बच्चन बच्चन सिंह, उन्होंने उनके माथे पे गोली लगी हुई थी। सो both of them knew कि he will not survive too long. So he said कि take my light machine gun. With this light machine gun, we all know that you would not leave, you would not let this enemy go back. तो LMG लेके दिगेंद्र कुमार scaled up and pointed towards Major Anwar Khan. तो so in that combat he also lost his LMG, or maybe there was only one bullet left in that LMG. But fortunately, with that one bullet, he could easily hit either his arm or his pistol of Anwar Khan. So even Anwar Khan was left with no weapon at that time, because a heavy machine gun cannot be easily used in point blank range. So both then engaged in hand-to-hand combat, and in that combat, Digender, grabbed him by his neck. उसने कहा हिंदुस्तानी मुझे छोड़ दे। उसने कहा क्यों, बारात मार है तू? He was a जाट from राजस्थान। उसने कहा तू बारात मार है जो छोड़ दी तूने। तो उसका यहाँ से गला पकड़ के, he was also carrying commando dagger। तो कमांडो डैगर जो होता है वो बहुत शार्प नाइफ होता है, अगर उसका एक हल्का सा भी कट लग जाए तो आदमी कुड नॉट सर्वाइव। तो वो कमांडो डैगर से उसके नेक पे हिट गया और उसको बिहेड कर दिया उसी वक्त। उसकी गर्दन हाथ में पकड़ के बोला, बोल कुत्ता तू के मैं। तो उसी वक्त ही वॉज द ओनली वन लेफ्ट एट दैट टाइम। उसने निकाला अपना तिरंगा झंडा और ऊपर जाके अब जगह देखने लगा, तो जगह भी नहीं मिली उनको गाड़ने की, क्योंकि टेरेन ही ऐसी थी। तो व्हाट ही डिड, ही
picked the body, beheaded body of Anwar Khan and placed it over there on the top, और उसकी गर्दन पे हमारे झंडे को उसने गाड़ा, और then he left, then he got unconscious thereafter. उसके बाद he was brought back to Srinagar hospital after many days, and then he was informed that he killed 48 soldiers single-handedly. And in the same year, on 15th August, he was awarded the Mahavir Chakra, the second highest gallantry award. हाईएस्ट होता है परमवीर चक्र, तो उनको महावीर चक्र मिला था। और जो उनके बाकी साथी थे जैसे कि सूबेदार भंवरलाल, उनको वीर चक्र मिला। तो साहब, इससे पहले क्या हुआ कि इस ऑपरेशन से पहले बेसिकली मेजर विवेक गुप्ता वाज लीडिंग दिस टीम ऑफ 10 कमांडोज, एंड वहाँ से कर्नल एम.बी. रविंद्रनाथ वाज लीडिंग द बटालियन, the whole operation. He was the commanded officer of this entire operation, which was embarked on 11th or 10th or 11th of June. So Colonel M.B. Ravindranatha chose his soldiers before embarking on this operation. तो ये जितने भी तमाम लोग थे सेकंड राजपूताना राइफल्स के, इसमें से ज़्यादातर लोग स्पोर्ट्स एथलीट्स थे। तो उनमें से तो उनको इन्होंने मौका दिया था वॉलंटियर करने का, तो वो सबसे पहले आगे आए थे, क्योंकि उनकी खुद की भी एक इच्छा थी कि भाई हम नहीं चाहते कि लोग हमको सिर्फ स्पोर्ट्स एथलीट्स के तौर पे देखें। आई थिंक वी कुड गिव द एनिमी अ रन फॉर देयर मनी, एंड वी आर क्वाइट गुड, वी विल बी क्वाइट गुड एट आवर टास्क। सो जब कर्नल एम.बी. रविंद्रनाथ ने अपनी टीम से पूछा कि भाई मुझे बदले में क्या दोगे, मैंने तो तुमको मौका दिया इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने का, तो सूबेदार भंवरलाल केम फॉरवर्ड एंड सेड कि सर 2 दिन बाद हम तोलोलिंग टॉप पर होंगे और मैं आपको वहाँ पे खुद चाय बना के पिलाऊंगा, ये वादा हुआ था। तो खैर साहब, अब ये सब होने के बाद जब कर्नल एम.पी. रविंद्रनाथ ऊपर पहुँचे तो उन्होंने टॉप पे पहुँच के सबसे पहला जो मैसेज दिया, वो मैसेज आज भी बहुत मेरे ख्याल में अभी तक कुछ डॉक्यूमेंट्री, कुछ मूवीज़ बन चुकी हैं इस वॉर के ऊपर, LOC कारगिल हो, लक्ष्य हो, तो उसमें आई हैव नॉट वॉच्ड ईदर ऑफ देम टिल डेट, बट इट इज़ सेड दैट वन लाइन मैसेज हैज़ बिकम वेरी फेमस। तो उन्होंने बोला, सर, सिर्फ एक लाइन बोली थी, सर आई एम ऑन तोलोलिंग टॉप। तो बट जब ऊपर पहुँचे तो आसपास बहुत सारे सोल्जर्स की डेड बॉडीज़ थी। ऑफ कोर्स इंडिया पेड वेरी हैवी प्राइस फॉर दिस तोलोलिंग टॉप, क्योंकि पिछले 23 दिन लगे थे इस हिल को कैप्चर करने में। यूँ माना जाता है कि कारगिल वॉर में आधे से ज़्यादा कैजुअलिटी इस पीक पर हुई थी, इस पीक को कैप्चर करने के लिए। कैसा, अब उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि अब वादा था चाय पिलाने का, तो अब जब भी आर्मी, जैसा मैंने बताया, आर्मी अपने साथ अपना ड्राई राशन लेके जाती है साथ में, अपने जितने भी तमाम जो फूड आइटम्स होते हैं, तो उसमें चाय, शुगर, पाउडर मिल्क, ये सब भी वो अपने साथ लेके जाते हैं। तो जब चाय बनाने लगे तो सोल्जर्स के पास कप्स नहीं थे या बर्तन नहीं थे जिसमें चाय बने, तो वहाँ पे एक जवान के हेलमेट के अंदर उस दिन चाय बनाई गई थी। उस सुबह जब चाय बन के तैयार हुई तो कर्नल साहब ने पूछा हो कि सूबेदार भंवरलाल, तो ये पता लगा कि ही डाइड फ्यू आवर्स और फ्यू डेज में भी, 1 या 2 दिन पहले उन्होंने अपनी शहादत दे दी थी। तो वो जो ट्रेडिशन है वो आज तक फॉलो होता है। मतलब आज भी हर साल 13 जून को सेकंड राजरीफ अपने CO को उसी हेलमेट में चाय पिलाती है। और एक ये बैरक लॉ और बन गई है सेकंड राजरीफ की। हर एक बटालियंस की अपनी अपनी शौर्य गाथाएँ हैं। जब भी कोई नया रिक्रूट इंडक्ट होता है राजरीफ में, उनको वो शौर्य गाथाएँ सुनाई जाती हैं, एंड दिस हेलमेट टी पार्टी इज़ वन ऑफ देम।
तो तोलोलिंग टॉप को रिकैप्चर करने के बाद बाकी के जो आसपास जो जितने भी पीक्स थे उनको हमने इजीली कैप्चर कर लिया। हालांकि उसमें से भी कुछ थे जो आसानी से नहीं हो पाए, जैसे कि टाइगर हिल 0.4875 कॉम्प्लेक्स। सो बट दिस वॉज कंसिडर्ड एज द ब्रेक थ्रू बैटल ऑफ द कारगिल वॉर, क्योंकि इसके कुछ दिन बाद ही हमने आसपास के नीचे की जो पीक्स थे उनको रिकैप्चर कर लिया था। और इसके बाद दुश्मन ने रिट्रीट करना शुरू कर दिया था। मतलब एक एक ना आर्मी में चीज़ सिखाई जाती है कि अगर कोई आपकी पोजीशन को कैप्चर कर लेता है तो आपको काउंटर अटैक करना पड़ता है उसी वक्त। क्योंकि जब अगर हमने कोई चीज़ रिकैप्चर करी है तो हमारी तरफ से भी तो कैजुअलिटी हुई है ना। तो हम तो जो अगर हमने उसको भले रिकैप्चर कर लिया है, लेकिन उस वक्त पे जो हमारे सोल्जर्स की प्रेजेंस होगी वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी और उनके पास उतने एम्यूनिशन बचे नहीं होंगे। तो उस पॉइंट पे काउंटर अटैक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये तोलोलिंग टॉप की जो लड़ाई थी वो इतनी ज़्यादा भीषण हुई थी कि इतनी भीषण लड़ाई थी कि दुश्मन ने काउंटर अटैक करने की हिम्मत भी नहीं करी थी। सो ये चीज़ थी साहब। और तोलोलिंग टॉप के बिल्कुल फुटहिल्स में ही कारगिल वॉर मेमोरियल भी बना हुआ है। तो उस वॉल पे उन तमाम सोल्जर्स के नाम शामिल है जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। और एंट्री गेट पे मेरे ख्याल में एक एक पोएम भी लिखी हुई है, पुष्प की अभिलाषा। अभिलाषा मतलब डिज़ायर, इच्छा। एक फूल की क्या इच्छा है, वो पुष्प की अभिलाषा जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी जो एक काफ़ी नोन राइटर थे उनकी लिखी हुई है। वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इन्वॉल्व थे और उस वक्त उनको मेरे ख्याल में 10 महीने की जेल हुई थी और उस दौरान उन्हें कविता लिखी थी। तो मैंने वो कविता खुद पढ़ी और दिस पोएम हैज़ ए मेटाफोरिकल मीनिंग कि एक फूल क्या चाहता है। तो वो जो कविता है वो मेमोरियल के मेरे ख्याल में एंट्री गेट पे लिखी हुई है, फूल पुष्प की अभिलाषा। तो ये थी सर बैटल ऑफ तोलोलिंग। और इसमें मैं बाद में मेजर कर्नल रविंद्रनाथ को भी वीर चक्र से मेरे ख्याल में वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। वीर चक्र मेरे ख्याल में इज़ अ थर्ड गैलेंट्री ऑनर इन द पैकिंग ऑर्डर। फर्स्ट इज़ परमवीर चक्र, सेकंड इज़ महावीर चक्र, थर्ड इज़ वीर चक्र। और सेकंड राजरीफ के 4 जाबाज सोल्जर्स को महावीर चक्र मिला था। एक तो नायक दिगेंद्र कुमार, दूसरे थे आपके कैप्टन केंगरूस। उनकी भी गजब कहानी है सर। कैप्टन केंगरूस, ये सारे ना यंग ऑफिसर्स थे। कैप्टन केंगरूस हो गए आपके मेजर पद्मा पानी आचार्य जी हो गए उड़ीसा से शायद से। ये सब लोग यंग ऑफिसर्स थे, क्योंकि हमारी आर्मी का एक ट्रेडिशन है कि दी ऑफिसर वुड लीड द आर्मी, लीड द बटालियन। इसीलिए इस वॉर में और जितनी भी तमाम बैटल्स हुई थी इससे पहले, उसमें हमेशा से हमारी तरफ से ऑफिसर्स की काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटी रहती है। भाई अगर आपका कैप्टन ही आपको लीड नहीं करेगा तो आप कैसे मतलब अपने आप को संभालोगे। तो कैप्टन केंगरूज वॉज फ्रॉम नागालैंड। और यूँ बताते हैं कि जब ये वो बैटल ऑफ तोलोलिंग के बाद जब किसी दूसरे फीचर को कैप्चर करना था, दोबारा सेकंड राजरीफ को भेजा गया था। तो उसमें कैप्टन केंगरूज ने बहुत स्टीप क्लाइंब करके ऊपर जाके रस्सा बांधा था और उस रस्सा बांध के उन्होंने लाइट मशीन गन को नीचे से खींचा था और अपने दोस्तों को रास्ता दिया था ऊपर आने का। और उस दौरान अपनी उस खुखरी से, जो नागा की खुखरी होती है ना, उस खुखरी से तीन तीन दुश्मनों को उन्होंने मारा था। और बाद में अनफॉर्चुनेटली ग्रेनेडियर के फटने से स्प्लिंटर उनके पेट में जाके लगा था और उस क्लिफ से 300 फीट नीचे जाके उनकी डेड बॉडी गिरी थी, कैप्टन कैंगरूज।
और जब वो ऊपर चढ़ रहे थे रस्सा रस्सा बांधने के लिए, उस वक्त उनके पैर फिसल रहे थे। तो उनके पैर ना फिसले इसलिए उन्होंने अपने जूते निकाल के साइड में रख दिए थे। रात को रात को जब टेम्परेचर -11 से 15 डिग्री सेल्सियस था, उस वक्त उन्होंने अपने जूते निकाल के साइड में रख दिए थे। वो थे कैप्टन कैंगरूज। मेजर पद्मा पानी आचार्य जी इन 5-6 लोगों को लीड कर रहे थे उस फीचर के लिए। आई थिंक रॉक नॉल था वो फीचर जिसको रिकैप्चर करना था। एंड मेजर पद्मा पानी मेजर पीपी आचार्य was wounded with 5 bullets and he was bleeding profusely. And despite that, despite the despite upon insistence by his companions, he did not push back. He did not retreat. उन्होंने कहा नहीं, मैं लीड तो मैं ही करूँगा। तो उस हालात में भी उन्होंने टीम को लीड किया और he was the first one to he was the first one who died in that operation. उसमें एक और जाबाज थे हमारे कैप्टन विजयंत थापर। वॉज अवॉर्डेड वीर चक्र पोस्टमोस्टली आई थिंक। और कैप्टन विजयंत थापर जो थे, उनके साथ उनका एक जो जिसको बोलते हैं हम अर्तली, मेरे ख्याल में जो सर्वेंट होता है, जो सर्व करता है अपने अपने ऑफिसर को, वो भी उनके साथ आया था क्योंकि उसने जिद करी थी कि अगर मेरे ऑफिसर्स जाएंगे तो मैं भी इनके साथ जाऊंगा। जगमाल सिंह। तो जगमाल सिंह डाइड इन द लैप ऑफ हिज कैप्टन विजन थापर एंड कैप्टन विजन थापर ऑल्सो डाइड इन दैट बैटल। तो ये कहानी थी सर सेकंड राजरीफ की। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं एक और स्टोरी के साथ आऊँगा। थैंक यू सो मच।